ख्वाहिश है कि उस पैर बातों में पढ़ना चाहता हूँ. Just lift up your hand. No one look around. The Holy Spirit is there. बाकी का मौजूद है. They're gonna fill you tonight. Hallelujah. Receive in the name of Jesus. Let the fire of Holy Spirit be on each one of you. You receive that presence of the Lord. His thick, His richly presence. Gonna make you stumble, might be, or fill your people tonight, Father. अपने बातों की presence से Lord, anoint the Lord from very head to the toe, Father. Hallelujah. In the home and तेरे लिए. Keep asking the Lord. अपने हाथों को बुलंद रखें. जब तक रख सकते हैं. Let the fire fall, Lord. Speak out. Receive it. Receive it. Hallelujah. Oh, Jesus, fill your people tonight, Father. Fill with the fire, Lord. Put the fire of Holy Spirit on them, Father. Receive in the name of Jesus. ये लहू का पारा मेरा, keep singing, keep thanking Him, Lord. ये लहू ही मेरा कफारा है. Hallelujah. Ora la casa de Dios, ora ora. Mother, hallelujah. The Holy Spirit is ready. Just bring it now. Bring it now, the Holy Spirit. यहीं खड़े रहो. Just keep standing. Stay here. Don't move out. The presence of the Lord is here. Bring it up, child. Quickly. Bless our life. In the name of Jesus, the Lord. Bless the bread and the wine in the name of Jesus, the Lord. इस शीरे को और इस रोटी को भर के चाहते हैं, Lord. This is your blood. This is your body, broken body, Father. Hallelujah. Distribute the church. Quickly, just distribute it. Split of a second. ये लहू कफारा मेरा. Keep singing, God. ये लहू इस लहू से पार लगूं. ये लहू किनारा. हालेलुया. इस लहू से पार लगूं. ये लहू किनारा मेरा. इस लहू body of Jesus. Come children, don't stand back. Just आगे आ जाओ बच्चे. It's a special time.
our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. खाने के बाद उसने प्याला लिया. This is the blood of Jesus. Hallelujah. It says wine because it's written in the King James Version, but it's not a wine alcoholic, it's a fruit juice, grape juice. So make sure you are drinking the juice. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lord. Don't give it to children, my child. ये बच्चों के लिए नहीं है, my children. This is not for the children. Understand it. Please learn things in the name of Jesus. Make sure parents or children don't drink it up. Father, we praise you. We love you, Jesus. And we ask to fill this place once again. Anoint the Lord. Your blood is here, Father. तेरा बेटे का लहू खुदा के उसके लोगों की जिंदगियों में. The new covenant allow us to drink that blood. The new covenant allow us to drink it, and we have taken it. हम नए हैं कि यादगारी में उसके लहू को पीते हैं. We drink it. Hallelujah. हमने यादगारी की है उस कुर्बानी की जो उसने सलीब पे दी. Lord, fill your people with the power of Holy Spirit. Anointed and Father, when they head to the door, and they receive the Holy Spirit. And they receive the understanding of your word, and they receive the power of the blood of your Son, Jesus. No other blood carries the same power, Lord. Only the blood of your Son, Jesus. Bless your people tonight, Lord. Prepare them to receive and listen to the word of Lord. तैयार करने का नाम को सुनने के लिए prepare them, Lord. In Jesus' name we ask and pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah! Thank you, children. Please be seated. Hallelujah. कुर्सियां सीधी कर ले जल्दी से. इस लहू से पार लगूं, ये लहू किनारा मेरा धोने का लहू, यीशु का लहू. बच्चों यहाँ से आ जाए, रास्ता अगर तंग हो गया. Thank you, children. Make it in order. यीशु के नाम. Pastor ji, please don't sit behind. आगे आ जाओ. Hallelujah, hallelujah. I request Sarah to just come on the stage and share the word of God. Hallelujah. हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत शाम के लिए. So don't sit that back. Just थोड़ा आगे आ जाए. Thank you. You receive the presence of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम. Stay in this presence. It's a beautiful, thick presence of the Lord. इसी रूह में पाक रूह को काम करने दीजिए कि वो कलाम भी आपके ज़हनों तक, अपने कानों तक पहुंचाए. अपने आप को खाली मत कीजिए. Stay in that presence. Hallelujah. खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत और बड़े दिन के लिए. ये हफ्ता जो हम मना रहे हैं या ये महीना जो हमने गुजारा, इसमें हम यीशु की मसलूबियत के बारे में जानते हैं, सीखते हैं और यादगारी करते हैं. एक बात मैं आपके ज़हन नशीन कर दूं कि ये महीना या ये हफ्ता जो है ये दुखों का नहीं है. ये हफ्ता खुशी का है और फतामंदी का है. और आज हमने संडे को मनाया खजूरों का इतवार, और आज हम उसकी यादगारी में मना रहे हैं लास्ट सफर.
ईद फतीर, जिसको ईद फसा भी कहते हैं, लास्ट सपर या पास ओवर, ईद फसा। पुराने अहद में आप खरूज की किताब उसके 12वें बाब में इसको देख सकते हैं। लेकिन आज हम यीशु की आखिरी फसा पे बात करेंगे। हम पुराने अहद में नहीं, हम नए अहद की बात करेंगे। लास्ट सपर, दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे यीशु की आखिरी दिनों में। तीनों अनाजील में हम देखते हैं, मत्ती, मरकस और लूका, इन तीनों अनाजील में जिस तरतीब से ये बताया गया है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ ये फसा गाई। ही सेलिब्रेटेड पास ओवर विद हिज डिसाइपल्स। उसने शायरबानी दी अपने शागिर्दों को। ही प्रेड इन द गत्समनी। चीज डिफरेंट है कि लूका में बस एक वाक्य ये हुआ कि शागिर्द जो थे वो आपस में बहस करने लगे कि हम में से बड़ा कौन है। और अब आज ये यूहन्ना की अंजील पर यूहन्ना बयान करता है। उसने इन सब में से कुछ नहीं बयान किया, उसने बहुत मुख्तलिफ चीज़ बयान की। उसने हमें बताया कि यीशु ने जब शागिर्दों के पाँव धोए, और आज हम इसी हवाले को लेकर चलेंगे। लूका 22 बाब 24 और 27, ये दोनों जो हवाले हैं यूहन्ना और लूका, दे आर रिलेटेड। लूका में शागिर्द बहस कर रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है, ग्रेट। जब हम इंग्लिश डिक्शनरी में ग्रेट का मतलब देखते हैं, ग्रेटनेस का, तो उसकी डेफिनेशन है हैविंग हाई स्टेटस और अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, बहुत इन्फ्लुएंस और पावर। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ और है। बाइबल मुकद्दस हमें ग्रेटनेस की डेफिनेशन बताती है। ग्रेटनेस इज सर्विंग। हालेलुया। एंड जीसस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्विंग। यीशु ने हमें करके दिखाया, नमूना दिया ग्रेटनेस का, और खुदावंद ने हम सबको भी उसी खिदमत के लिए बुलाया है। उसने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम बड़े बने, हम ग्रेट बने। ही कॉल्ड अस टू सर्व, नॉट टू बी ग्रेट। यूहन्ना में आ जाते हैं। यूहन्ना 13 बाब, जिनके पास कलाम है वो निकालिए। यूहन्ना 13 बाब 2 आयत से 17वीं आयत तक। यूहन्ना 13 2 आयत से। और जब अबलीस शमाउन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं बाप के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमाउन पतरस तक पहुंचा। उसने कहा, ए खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी ना धोने पाएगा। यीशु ने उससे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमाउन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूँकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं। और जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। हालेलुया। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता,
और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि इन पर अमल भी करो। हालेलुया। इब्लीस जब आसमान से गिराया गया तो वो फरिश्ता था और उसका नाम लूसीफर था और उसके पास वो अथॉरिटी और वो पावर थी, लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड अपनी उस पावर के पास जो कुछ खुदावन ने उसके हाथ में किया था, और उसको लालच था कि मैं इससे ज़्यादा करूं, बल्कि खुदावन से भी ऊपर हो जाऊं। मेरे साथ निकालिए यसाया 14। इसमें हम देखेंगे 5 आई विल्स, 5 मैं। यसाया 14 बाब उसकी 12वीं आयत। ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर ज़मीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं शमाल की तरफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद बनूंगा, लेकिन तू पताल के गड़े की तह में उतारा जाएगा। 5 आई विल्स, 5 मैं। ये शैतान, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और उसमें एक मगरूरी आ गई और उसको लगा कि शायद वो खुदावंद से बड़ा बन सकता है, लेकिन उसके इस लालच ने उसको बड़ा नहीं बल्कि आसमान से नीचे गिरा दिया। द मोमेंट यू थिंक कि जो मेरे पास है वो कम है, मैं शायद इससे ज़्यादा डिज़र्व करता या करती हूँ, मुझे इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। लेकिन वो लोग जो हम्बल हैं, जो आजिज़ी इनकसारी के साथ हर चीज़, अपना हर काम, अपना हर एक्शन खुदावंद की मर्ज़ी से करते हैं, उसके सपुर्द करते हैं, वो उनको वक्त पर सरफराज करता है। जो हम्बल होते हैं वो उनको इज़्ज़त देता है, वो उनको बढ़ाता है। मत्ती 23 बाब 12 आयत ये भी देख लेते हैं। मत्ती 23 बाब 12 आयत। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इंग्लिश बाइबल में है, व्हेन यू हम्बल योरसेल्फ ही विल एक्सॉल्ट यू। तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को छोटा बनाएं। आज जो हम हवाला देख रहे हैं, इसमें हम सीखते हैं कि खुदावन ने सही मानों में हमें हम्बल होने का, आजिज़ होने का तरीका सिखाया है। हम किस तरह खिदमत कर सकते हैं, और ये सबसे मुश्किल अमल है, क्योंकि कोई भी खिदमत करना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि वो खिदमत करवाए। नोबडी इज़ रेडी टू गिव, हर एक को लेना है, किसी को देना नहीं है। और हम खिदमत करने से किसी के अंडर नहीं आ जाते, हम किसी के मातहत नहीं हो जाते। हमें लगता है कि वी आर नॉट सबसर्विएंट, हम किसी के ताबे नहीं हो जाते, बल्कि जो खिदमत करता है वो बड़ा है। हम इसलिए खिदमत नहीं करते कि हम कमज़ोर हैं, हम इसलिए खिदमत नहीं करते कि हम किसी से कम हैं या हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। यीशु ने इसलिए पाँव नहीं धोए थे कि वो शागिर्दों से कम था या उनके मातहत था। उसने उनसे कहा कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। एंड येट ही वॉज वॉशिंग देयर फीट, और फिर भी उसने उनके पाँव धोए। हम इसलिए खिदमत नहीं करते कि हम कमज़ोर हैं, या यीशु ने इसलिए पाँव नहीं धोए कि वो कमज़ोर था, वो उस वक्त भी खुदावंद ही था। हम इसलिए खिदमत करते हैं कि हम मजबूत हैं। इस हवाले में हम देखते हैं कि यीशु उस एक रिलेशनशिप से गुजर रहा है जो उसका और यहूदा का है। ये वही यहूदा है जिसने उसके साथ रहा, उसके साथ चलता फिरता उठता बैठता रहा, और वही उसको धोखा दे रहा है, और यीशु ये सब जानता है। सो ही वॉज गोइंग थ्रू दैट betrayal, that abusive relationship, and yet he was washing feet. और इब्लीस यहूदा में समा गया। अगर हम यीशु की जगह होते ना, और हमें पता होता कि कोई हमारे खिलाफ ये कर रहा है या ये हो, हम पहले जाके उससे हिसाब किताब करते हैं। पर यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? पाँव धोए। यीशु ने उसे माफ़ किया। यीशु क्योंकि उनसे मोहब्बत करता था।
इब्लीस जब यहूदा में समाया, यीशु तब भी खुदावंद था। हम तीसरी आयत में देखते हैं, यीशु जान चुका था कि बाप ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है, और रहन उस मौका पर व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू दैट बिट्रेयल, गोइंग थ्रू दैट अब्यूसिव रिलेशनशिप, उस बदसलूकी में, उस तौहीन में, उस बेइज्जती में, उस अजियत में, कोई चीज उसको रोक ना सकी। वो तब भी खुदावन था, उसको उसके रुतबे से कोई हटा ना सका। इस हवाला में हम देखते हैं कि यीशु ने अपने कपड़े उतारे, he laid aside his garments। हाँ, हम पुराने अहद में देखते हैं कि हारून जब काहिन बना तो उसका जो लिबास था वो खुदावन ने खुद डिज़ाइन किया था। उसका जो लिबास था उसमें उसके सीना बंद में ओरीम और तमीम और 12 कीमती पत्थर रखे थे। जब हारून खुदावंद के हजूर जाता था तो लोगों की यादगारी होती थी, और उसका जुब्बा था वह आसमानी रंग का था, और उसके दामन के चारों तरफ अनार और सोने की घंटियां थीं, और ये लिबास उसके काहिन होने की निशानी थी, और वो रिप्रेजेंट करता था खुदावंद को लोगों के सामने और लोगों को खुदावंद के सामने। ही वॉज द मीडिएटर, वो दरमियानी था लोगों में और खुदावंद में। और आज जब हम यीशु को देखते हैं जो हमारा सरदार काहिन है, ही लेड असाइड हिज गारमेंट, उसने अपना वो लिबास उतार कर साइड पे रखा, और उसने रुमाल अपनी कमर में डाला और खादिम का रूप ले लिया। हम्बल क्लोथिंग, नो ज्यूल्स, नो प्रेशियस स्टोन्स, नो गोल्ड। He girded a towel। उसने वो अपना लिबास उतार के साइड पे रखा। आज हमारे पास सवाल है कि क्या हम खादिम बनने के लिए हम क्या उतार सकते हैं? और इसका मतलब है कि हमें कुछ उतारना है। जब हम खिदमत में हैं तो हमें सेक्रीफाइस करना है। देयर इज नो सर्विस विदाउट अ सेक्रीफाइस। क्या आज आप रेडी हैं उस सेक्रीफाइस के लिए? हालेलुया। जब ये सब यीशु के साथ हो रहा था तो वो आम इंसान नहीं था। तब वो जान चुका था कि खुदावन ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है। He was God at that time। Just give me a second, मेरा पेज घूम गया। सो आज जो हम हवाला देख रहे हैं, हम इसमें सीखते हैं कि हम सही मानों में आजिज़ कैसे बन सकते हैं, ठीक है? और यीशु ने हमें वो करके दिखाया। हम अपने उन गारमेंट्स को, हैवी गारमेंट्स को पहनकर पाँव नहीं धो सकते। हमें बहुत कुछ उतारना है आज की रात। तो क्या आज आप लोग रेडी हैं वो सब उतारने के लिए? यीशु ने उस लोगों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? वो जानता था कि वो कौन है, वो किसी से कंफर्म नहीं कर रहा था। फिर उसने पतरस से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, मसीह है। उसको कोई डाउट नहीं था, उसको पता था वो कौन है। जब यहूदा ने उसको रोमियो के हवाला किया, वो तब भी खुदावन था। जब उसे बेचा गया, वो तब भी खुदावन था। जब उसको कोड़े लगे, वो तब भी खुदावन था। जब उसको कांटों का ताज पहनाया गया, वो तब भी खुदावन था। जब उसे मसलूब किया गया, वो तब भी खुदावंद ही था। लेकिन फिर भी उसने खादम की सूरत इख्तियार की। ये वो ख़ास लम्हे थे आखिरी जो अपने शागिर्दों के साथ गुजार रहा था, और वो उन्हें सिखाना चाहता था कि वो कैसे खिदमत कर सकते हैं। उसने एक नमूना उनके सामने रखा। आज हम भी
हम खिदमत करना चाहते हैं पर हम उतारना नहीं चाहते, हम बहुत कुछ छोड़ना नहीं चाहते। उसको पता था वो कौन है, वो सरदार काहिन था। उसको किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं थी, उसको किसी की एफर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी। वो जानता था वो कौन है। ही वॉज गॉड। उस बिट्रेयल में, उस सारे अब्यूसिव रिलेशन में वो खुदावन था। आज हम कुछ पॉइंट सीखते हैं कि हम कैसे खिदमत कर सकते हैं, कैसे हम कुछ चीज़ों को उतार सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ले असाइड योर टाइटल्स। इब्लीस जब आसमान से गिराया गया तो वो लूसीफर था, लेकिन जब वो गिराया गया तो वो अपने टाइटल्स के साथ गिराया गया। खुदावंद हमें हमारे टाइटल से नहीं जानता। पास्टर, बिशप, एवेंजलिस्ट, वो हमें हमारे नाम से जानता है, और उसने वादा किया कि वो हमारे नाम को ऊंचा करेगा। हमने भी कुछ मंथ्स पहले चर्च में ऑर्डिनेशंस की थी और हमने टाइटल्स दिए थे। वो टाइटल्स आपको बड़ा बनाने के लिए नहीं थे, वो टाइटल्स सिर्फ आपकी जॉब्स डिफाइन करने के लिए थे। तो डोंट लेट योर टाइटल्स ब्रिंग प्राइड इन यू। ये जो टाइटल्स हैं ये मगरूरी ले आते हैं, जिस तरह लूसीफर में आई थी। आपकी खिदमत आपको बड़ा बनाएगी, आपके टाइटल्स नहीं। सो ले असाइड योर टाइटल्स। सेकेंड थिंग, ले असाइड योर टैलेंट्स। वी आर टू टैलेंटेड। हम इतने ओवर टैलेंटेड है कि हम खिदमत नहीं करना चाहते। हम अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को जानते हैं और देखते हैं कि वो खुदावंद ने उन्हें बहुत खूबसूरत और अच्छे टैलेंट्स दिए हैं, लेकिन वो चर्च में खिदमत नहीं करना चाहते। वो इनविटेशन के बगैर चर्च नहीं आते। उनको जब तक बुलाया ना जाए, उन्हें जब तक प्रोटोकॉल ना दिया जाए, वो चर्च नहीं आते। सो ये जो टाइटल्स हमें मिले हैं ये किसी की तरफ से नहीं है, ये खुदावंद ने की बख्शिश है, और अगर हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शायद वो हमसे छीन भी ले। सो ले असाइड योर टाइटल्स टुनाइट। तीसरी बात, ले असाइड योर ट्रेजर्स। ले असाइड योर ट्रेजर्स। हमारी बहुत सी कीमती चीज़ें हैं। सबसे कीमती तो हमारा रुपया पैसा है, हमारे रिश्ते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी दयाकियाँ, अपनी ऑफरिंग्स खुदावंद के घर में लाएं। इसलिए नहीं कि खुदावंद गरीब है या आप नहीं देंगे तो उसका सामान बंद हो जाएगा। नो नो, हम इसीलिए देते हैं टू ब्रेक दैट कर्स ऑन आवर फाइनेंसेस। उस लानत को ख़त्म करने के लिए अपने हदिये और नजराने खुदावंद को दें, क्योंकि जो कुछ उसने हमें दिया है वो हमारा नहीं है, वो उसने हमें दिया है, और हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको वापस लौटाएं। हम किसी चर्च को, किसी खादम को, किसी पास्टर को नहीं देते, हम उसको देते हैं जिसने हमें मुहैया किया है। हम अक्सर एक गलती करते हैं, प्रोडिगल सन वाली, मुसरिफ बेटे वाली। उसने क्या किया था? उसने अपने उस गिफ्ट को, उस रुपए पैसे को ज़्यादा अजीज़ रखा था, ना कि उसको जिसने उसको दिया था, अपने बाप को। आज हम भी यही करते हैं, हम अपने मुहैया करने वाले से ज़्यादा अपने उन ट्रेजर्स को अजीज़ रखते हैं। सो टुनाइट, डू यू लव द गिफ्ट और द गिवर? आपको इस लानत को ख़त्म करना है। स्टार्ट गिविंग, और आप उसके बड़े हाथ को देखेंगे, आप उसकी बरकतों को रिसीव करेंगे। फोर्थ पॉइंट, आर यू विलिंग टू ले असाइड योर टेम्परामेंट? मूड स्विंग्स नहीं, सिर्फ औरतों में नहीं, आदमियों में भी बहुत होते हैं। एटीट्यूड्स, टेम्परामेंट्स, मूड स्विंग्स। हमारी बहुत सी बरकतें रुकी हुई हैं हमारे एटीट्यूड्स की वजह से, और हमें पता भी नहीं चलता कि शैतान हमसे कब क्या चुरा ले गया। हम बोलते हुए सोचते नहीं, हम करते हुए सोचते नहीं। सो टुनाइट, ले असाइड योर टेम्परामेंट। खादिम का रूप इख्तियार कीजिए। सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। ग्लैडनेस इज एन एटीट्यूड जो हमें कलाम में बताया गया। अपने पूरे दिल से, खुशी से, मुसरत से खुदावंद की खिदमत कीजिए।
इसलिए नहीं कि हमें करनी है, कि हम चुने हुए हैं, हम में से हर कोई चुना हुआ है, बट वो हमारे एटीट्यूड को देखता है. सो देयर इज नो सर्विस विदाउट अ सेक्रीफाइस. बहुत सी कुर्बानियाँ, इसके अलावा खिदमत मुमकिन नहीं है. यहाँ जो खिदमत कर रहे हैं उन्हें पता है, बहुत सी जंग लड़के हम यहाँ तक पहुँचते हैं. इट्स नॉट एन ईजी प्लेस. इट्स अ प्लेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यीशु ने अपने जलाल को, अपनी प्री एग्जिस्टिंग ग्लोरी को, अपने कादरे मुतलिक होने को एक साइड पे किया. He was God at the time. वो तब इंसान के रूप में था, पर वो इंसान नहीं था. और वो जान चुका था कि खुदावन ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है. और ये जो लम्हे थे लास्ट, ये उसने अपने शागिर्दों के साथ गुजारे और उनको एक नमूना पेश किया कि खादम किस तरह बना जाता है. हम भी बुलाए गए हैं. वी आर ऑल कॉल्ड टू सर्व. So are you willing tonight to lay aside your heavy garments? बहुत बोझ है हमारे कांधों पे. Full of pride, full of me, full of I. आज की रात उन्हें उतारिए. कहीं हम भी गिराए जाएं, गिराए ना जाएं, फेंके ना जाएं. तो खुदावंद आज की रात हमें फिर, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, आप सब इससे वाकिफ़ हैं. आज हम सिर्फ यादगारी कर रहे हैं. ये सब हो चुका है. खुदावंद ने हमें करके दिखा दिया है, एक नमूना पेश कर दिया है. सो आज की रात इट्स अ रिमाइंडर अगेन. अपने आप को जांचिए, परखिए, अपने आप को आजिज़ कीजिए. हर वक्त तैयार रहें खिदमत के लिए. कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई खिदमत बड़ी या छोटी नहीं है. इट्स योर एटीट्यूड. एक दूसरे से मोहब्बत रखिए जिस तरह यीशु ने मोहब्बत रखी. वो यहूदा साथ ही था और यीशु जानता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है. बल्कि यहूदा ने हेल्प कर दी यीशु की, आसान कर दिया काम को. होना तो यही सब था, ये तो पहले से प्लान था. लेकिन यीशु ने कहा अफसोस उस पर जिसकी वजह से मैं पकड़वाया गया. यीशु जानता था ये सब. तो उसने उस आखिरी वक्त को, वो उनसे अपनी कोई पर्सनल बातें भी कर सकता था. आखिरी टाइम था उसका उसके शागिर्दों के साथ, वो उनसे मोहब्बत रखता था. लेकिन उसने उन्हें करके दिखाया. वो सब तो बहस में पड़े हुए थे कि हम में से बड़ा कौन है, पर यीशु ने किसी बात का जवाब नहीं दिया उन्हें. बल्कि वो मेज से उठा, he laid aside his garment and he started serving. आज हम बहुत सी बहस में पड़ जाते हैं. अब वो वक्त है कि हम करके दिखाएं. जिस तरह यीशु ने नमूना पेश किया, आज हम भी नमूना पेश करें. एक दूसरे से मोहब्बत रखिए. बड़ा मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पे उनसे रखना जब आपको पता हो कि ये आपको बिट्रे करेगा, ये आपको धोखा देगा. बहुत सी नाराज़गियाँ, बहुत कुछ हम पीछे नहीं करते. हमारे अंदर अभी भी बहुत सी बिटरनेस है, हम उसे नहीं निकालते. पर खादम बनना इतना आसान नहीं. माफ़ करें, लोगों से मोहब्बत करें जिस तरह यीशु ने रखी. उसने माफ़ किया यहूदा को. पतरस भी भाग गया था, उसने भी इनकार किया था, पर यीशु ने पतरस को बहुत सरफराज किया. So we are all called to serve one another. आज की रात है कि हम तैयार हों खिदमत के लिए, उस बड़ी खिदमत के लिए जिसके लिए हम बुलाए गए हैं. आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बुलाया नहीं गया. We are all called to serve. और सिर्फ यही एक काम खुदावन ने हमें दिया है. इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं, हमारा कोई काम नहीं इस दुनिया में. So prepare yourself. आज की रात है, इट्स अ रिमाइंडर. दोबारा अपने आप को जांचिए, परखिए. जो चीज़ें उतारने की ज़रूरत है, जो चीज़ें साइड पे रखने की ज़रूरत है, आज की रात कीजिए. खुदावंद आपको बरकत दे. गॉड ब्लेस यू. अब वक्त है कि हम जो नमूना यीशु ने हमें पेश किया उसे अमली जामा पहनाएं. हम भी वो करके दिखाएं. सो आई आस्क पास्टर अदील टू प्लीज़ टेक ओवर. और अपने लीडरशिप से भी कहूँगी कि प्लीज़ सामने आ जाएं.